सवाल: हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक किस तरह हुई? जवाब: सूरह तिब्बत नाजिल हुई जिसके अताब पर अबू लहब ने अपने बेटों अतबा और अतीबा से कहा, मेरी मुलाकात तुम दोनों से हराम है, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक ना दे दो। इस बिना पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक हुई। सवाल: यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब: यमन में नबूवत का दावा असवद अंसा ने किया। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले रूए ज़मीन पर किसकी हुकूमत थी? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले रूए ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। सवाल: मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा जहन्नुम में रहेगा? जवाब: मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 साल जहन्नुम में रहेगा। सवाल: अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की? जवाब: अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्म गिरामी क्या था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्म गिरामी औरिया था। सवाल: साबिक अल-वलून किन सहाबा कराम को कहा जाता है? जवाब: साबिक अल-वलून इन सहाबा कराम को कहा जाता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए। सवाल: सहाबा कराम में से कौन से सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: सहाबा कराम में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले किसको दी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दी। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: अहले मक्का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किन अलक़ाबात से पुकारते थे?
جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب: شرک کا متضاد لفظ توحید ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔
سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال: پہلے کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ جواب: پہلے کلمے میں 24 حروف ہیں۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے 18 فرشتے آئے تھے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام اس لیے کیا کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال: مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب: مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ سوال: غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟ جواب: حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھی۔
सवाल, कुरान के पारों की तकसीम में क्या मसलियत थी? जवाब, एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो सकता है। सवाल, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग कौन हैं? जवाब, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग हजरत मसअब बिन उमैर थे। सवाल, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अलकंदी है। सवाल, चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब, जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 79 बरस थी। सवाल, चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं और कौन सी किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी? जवाब, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी किसका बेटा कहते हैं? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी अल्लाह का बेटा कहते हैं। सवाल, सबसे आखिरी में मौत किसको आएगी? जवाब, सबसे आखिर में मौत मलकुल मौत को आएगी। सवाल, सबसे पहले रसूल का नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले रसूल का नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की उम्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितनी ज़्यादा थी? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की उम्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह ज़्यादा थी। सवाल, इशा की नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, इशा की नमाज के बारे में हुक्म है कि जब मगरिब में आने वाली सुर्खी बिल्कुल मिट जाए।
सवाल, सबसे पहले मिसवाक किसने इजाद की थी? जवाब, सबसे पहले मिसवाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इजाद की थी। सवाल, सबसे पहले चक्की किसने बनाई? जवाब, सबसे पहले चक्की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई। सवाल, सबसे कम सूरत कुरान की किस मंजिल में है? जवाब, सबसे कम सूरत कुरान की पहली मंजिल में है। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारिश का ही पानी पिया, कुएं का कभी नहीं पिया। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सौदान बिन इमरान ने शहीद किया। सवाल, क्या आप जानते हैं अहले जन्नत के सफ़ों की तादाद कितनी होगी? जवाब, अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 हमारी यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 बाकी सब उम्मतों की होंगी। सवाल, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल, किस नबी से ख़ता सरजद हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरजद हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत और जाए विलादत बताएं। जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत 21वीं और जाए विलादत बैतुल लहम में है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। सवाल, तूफ़ान के खात्मे और कोए जूदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस परिंदे को खुशकी पर भेजा कौन सा था? जवाब, तूफ़ान के खात्मे कोए जूदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौवे फिर कबूतर को खुशकी पर भेजा था।
सवाल, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का हिस्सा नाक है जो गर्म हो जाती है। सवाल, खुतबा उर्दू ज़बान में पढ़ना या खुतबे में उर्दू के शेर पढ़ना क्या अमल है? जवाब, अरबी ज़बान के सिवा हर ज़बान में खुतबा मकरूह है, अलबत्ता फ़र्ज़ खुतबा अदा हो जाता है। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16-17 साल होगी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल, हवारी रसूल किस साहबी का लक़ब है? जवाब, हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, नमाज जुमा में दूसरी अजान किन साहबी ने शुरू करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल, हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? जवाब, हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में मिली थी। सवाल, इल्म का शहर किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का शहर कहा जाता है। सवाल, फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं? जवाब, फरिश्ते लफ्ज़ कुन से पैदा होते हैं। सवाल, जन्नत का वो कौन सा मुकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस वो मुकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सवाल, कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब, आबे जमजम पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। सवाल, किसने खाना काबा के अंदर हाजियों को कत्ल किया?
جواب: ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب: شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: غار سور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب: غار سور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہنچاتے تھے۔ سوال: عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔